Hello everyone. Long time since I've put up a video, and I know I have been busy and बहुत time से help नहीं कर पाया. There have been a few things that have come up. CMAT का announcement आ गया and also CET अब नजदीक आ रही तो टेंशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है. It's already February and no notification yet. March almost आ गया है. Don't worry, CET का dates expected. Nobody has any idea. Don't trust anyone. There are plenty of people saying on YouTube कि ये डेट को मई में होगा, जून में होगा. डोंट वरी, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है डोंट ट्रस्ट एनीवन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आज आई एम गोइंग टू टेक अ वीडियो ऑन. आई गॉट दिस डाउट सो मेनी टाइम्स दैट सर मेरी प्रोफाइल में गैप है तो एमबीए प्लेसमेंट में क्या फर्क पड़ेगा. सर मेरी प्रोफाइल में 2 साल का गैप हो गया, मैंने 2 साल काम किया. या फिर सर मैंने 2 साल कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ प्रिपेयर करा था और गैप आ गया तो एडमिशंस में क्या फर्क पड़ेगा. सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाट इज गैप एंड मोस्ट पीपल डोंट इवन नो व्हाट अ गैप इज. देखो, जो तुम्हें गैप लगता है, जो कॉलेजेस कंसिडर करती है गैप, दे आर टू टोटली डिफरेंट डील्स. So I'm going to explain all the doubts today. And so let's start. And I also have 3 very, very nice announcements today for you guys. So yeah, everything you need to know about having a gap year. जो मुझे पता है मैं सब बताऊंगा. I have been through the summer placement process. मेरा final placement process भी हो चुका है. And also yes, JBMS का final placement process has been amazing. I'm going to put up a video on that. And also I'm going to put up a video on how do you not trust all the placement reports. So all the placement reports that you see, they are lying. सब झूठ बोल रहे हैं और मैं समझाता हूँ कैसे झूठ बोलते हैं एंड कैसे उस झूठ को समझना है. सो आई शो यू एवरीथिंग. चलो. So before that, the first announcement that I have is I'm taking a free live session on how to crack CET. If you're starting your prep now or if you're getting serious now, अब तक seriousness नहीं आई, अब serious होना है. So I'm taking this session especially for that. And I've called 3 people who got into JBIMS this year. Prachi Bhagia, she was the All India rank 1, 100 percentile. Mohammad Arkam, 99.98 percentile. And Rohit Chogle, even he's right now at JBIMS. He's one of my students. So 3 लोगों को मैं बुला रहा हूँ. I'm going to tell you everything about 20 वाला pattern. They are going to tell you everything about 21 का pattern. सब कुछ कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा स्केड्यूल, कौन से मॉक्स. You can ask them anything. Now this will be a 7 to 9 का सेशन. 7 से 7:30 and 8:30 से 8:30 से 9 they will be non recorded things. So if you want, like, तब मैं सब सच बोलता हूँ and that is when I tell you all the inside secrets, JBIMS का, दूसरे क्लासेस का, everything, how much ever the overall industry, I tell you how things work and things after MBA, whatever I have gotten out my research. तो first half an hour, last half an hour are absolutely candid, तो वो मैं record नहीं करता, that is not for YouTube. And बीच का जो 1 घंटा है 7:30 से 8:30, that will be recorded and we are gonna have these 3 people here. And similarly for CMAT, because CMAT का रिजल्ट आ गया, CMAT का नोटिफिकेशन आ गया है, we are having 3 people who topped the CMAT. फहद निजाम हमारे साल का CMAT टॉपर, शिवम निखरे ये साल का CMAT टॉपर, the one in my juniors, and सिद्धांत नायर जीके का रैंक 1. Also I know that CMAT का पैटर्न चेंज हुआ है. Everything is going to be discussed there कि कैसे नए पैटर्न को टैकल करना है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीके को कैसे हेल्प करना है. जीके के लिए सिद्धांत एंड शिवम निखारे आर लिटरली द बेस्ट पीपल टू हेल्प यू आउट. ट्रस्ट मी, दे आर वेरी गुड विद देयर जीके. Innovation and entrepreneurship, I've been doing a little bit of research and I'm going to help you out with that. With that, mocks, section wise strategy, सब कुछ help होगी. Again same thing, आधा घंटा not recorded, बीच का 1 घंटा with these 3 people, it's going to be recorded. And I hope you guys really join. दोनों का लिंक्स देखो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. bit.ly crack CET 22, bit.ly crack CMAT 22. And there is another announcement. I'm starting a group that is on Telegram. वो group का description मैं bio में डाल दूंगा. So this group is going to be जहाँ पे मैं I'll take regular weekly one-to-one sessions, not one-to-one, sorry, live doubt solving sessions मैं वहाँ पे लूंगा. हफ्ते का एक लूंगा. So that happens much more for my students. मैं तुम्हें हफ्ते का एक दूंगा. Along with that, I'll put LR के practice sums there. अच्छी क्वालिटी के LR प्रैक्टिस सम्स डालूंगा फॉर फ्री. उधर कुछ मस्ती वस्ती नहीं, उधर सिर्फ CET CMAT का प्रिपरेशन का डिस्कशन होगा. एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन विद दैट. एंड मेनी ऑफ यू हैव बीन आल्सो आस्किंग फॉर अ डिस्काउंट ऑन क्रैकर टेस्ट कोर्स. वो ग्रुप पे वो भी होगा. सो एवरीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, डिस्क्रिप्शन चेक करना. यू विल गेट द कूपन कोड टू गेट अ डिस्काउंट इन CET का कोर्स, अभी जो हमारा क्रैकर टेस्ट का कोर्स है. एंड ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ. ओके, दैट विल बी अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम. सो या चलो. So gap year, what is a gap, should I take a gap, ये सारी points discuss होगी. सारी points देख लो and let's start. What is a gap? One of the most asked questions because people don't know what a gap is. Guys समझो, gap मतलब okay, 2 things. तुम जस्ट ग्रेजुएट, तुमने 2021 में अपना ग्रेजुएशन खत्म किया. 6 महीने बचे हैं CET के लिए, CMAT के लिए, सॉरी 6 महीने बचे हैं CAT, CET, CMAT ये सब के लिए तुमने प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीने डाले. Is that a gap? No. So post graduation,
इफ यू हैव मोर देन अ सिंगल ईयर ऑफ गैप, तो तुम्हें गैप सर्टिफिकेट की जरूरत, मोर देन अ सिंगल ईयर ऑफ गैप। देखो, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद अगर 1+ years हो गया है, दैट इज व्हेन यू नीड अ गैप। दिस इज कॉल्ड अ गैप। अगर 1 से कम साल है तो तुम्हें गैप की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट अ गैप। अ कंपनी, अ कॉलेज विल नॉट कंसिडर दैट अ गैप। यू कैन सिंपली से मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, माय एजुकेशन वाज स्टिल गोइंग ऑन। गैप का मतलब होता है ग्रेजुएशन के बाद अगर 1+ year हो गया है एंड यू डोंट हैव एनी वर्क एक्स, नो वर्क एक्स, you have no further education, and also you have no certification in that period. ये सारी चीजें तुम बोल सकते हो that these are called a gap. Understand that gap में बहुत, gap is a complicated, it's not just simply कि अरे मेरे ग्रेजुएशन के साल बीत गया मतलब गैप हो गया। नो, गैप को तुम बहुत तरीके से नेगेट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आई हैव अ 1.5 year का quote unquote gap which I don't even call it gap on my profile, और कोई नहीं बता सकता कि वो गैप है या क्या है। I'll tell you how to beat that. चलो, अब now the second one, should I take a gap? Now there is one answer for this. Now all of you will say that, oh my God, he's saying take a gap. So guys, understand, gap कोई बुरी बात नहीं है. Everybody has gaps. And see, I have students, I have friends whose fathers passed away in Corona. Now understand, losing a father means that पूरी घर की responsibility तुम पे आती है. It's a huge emotional deal. 1 साल का गैप हो गया. He had to leave his job. He had to leave his college. वो MBA का preparation भी नहीं कर पाया. Is he worried about the gap? No. वो MBA, वो जब जाएगा इंटरव्यू में, the interviewers will ask him कि सुनो, why do you have a year of gap in your profile? First of all, ये समझो, a gap does not mean तुम्हें MBA का कॉल नहीं आएगा. Your MBA का कॉल is based on your scores, previous scores of education, your CAT, ZAT, CET, CMAT, ये सब का, ये सब की वजह से तुम्हें कॉल आता है. These are the only two things. And along with that, a little bit of your work ex. But work ex का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता. These are the two major things जिसकी बेसिस पे तुम्हें कॉल्स आते हैं. वो कॉल में बाद में तुम पीआई तक पहुंचोगे, तुम्हें पीआई में वो लोग पूछेंगे इंटरव्यू में कि तुम्हारे प्रोफाइल में गैप क्यों है. यू कैन से जेन्युइनली कि सुनिए मेरा ही प्रॉब्लम हो गया था, या फिर ओके आई वाज ट्राइंग फॉर द बेस्ट कॉलेज, सो व्हेन आई वाज आस्क्ड दैट सर लाइक जिगर व्हाई डिड यू टेक अ गैप इन योर प्रोफाइल, आई सेड वेरी सिंपली, आई न्यू इफ आई वेंट टू एनी अदर कॉलेज it would not be as good as coming into JBIMS. The aspirations or the dreams that I have will really be supported if I am a part of JBIMS. And that is why I believed that sacrificing a year or two was absolutely worth it. मुझे पता था कि 1-2 साल एक्स्ट्रा डाल दिए JBIMS के लिए तो मेरे लिए वर्थ होगा, बिकॉज मेरा जो प्लानिंग है मेरे फ्यूचर के लिए वो पक्का मैं JBIMS के साथ खत्म कर पाऊंगा. That is the kind of confidence that you should have, and these are the kind of answers that you should build. I also in Crackaway test I have a total GDPI का training. I tell you कि कैसे PI में इंटरव्यू देना है, कैसे तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से कैसे करना है. So it's a complete personalized thing. Now, what should I do in a gap? अगर समझो तुमने गैप ले लिया, सिर्फ पढ़ाई के लिए तुम गैप ले लो, okay? How can you justify it? How can you do things? I'll say just 2 things, and that will literally change your entire gap का story. One is you can do NGO. I have 3 years of work experience, 3 years of experience as an NGO teacher. Trust me, NGO का काम तुम्हें कब काम आएगा पता है? When you are in an interview 2 टाइप के होते हैं. एक इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यूअर तुम्हें सवाल पूछ रहा है और तुम जवाब दे रहे हो. That is a bad interview. Bad interview is when the interviewer asks you. What's a good interview? Good interview is जब वो तुम्हें पहला सवाल पूछता है ना कि जिगर tell me about yourself. You give them such rich information, you give them such a great answer that उनको कुछ खुद से सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो मैंने, so if I tell them that I'm a certified guitarist from the Trinity College of London, which I am, so they get impressed. मैं बोलता हूँ मैंने 3 साल एनजीओ में काम किया है, they get impressed. मैं मेरी कॉलेज में मार्केटिंग लीड था, they get impressed. मैंने अपना खुद का एंटरप्राइज चालू किया, Crackaway test, they get impressed. वो लोग पता है, वो लोग खुद से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, वो लोग ये जो चीजें मैंने बताई है ना उनके बारे में ही बात करते रहेंगे. इंटरव्यू कितना चलेगा? 10 मिनट 15 मिनट. अगर I have good things to talk about what I have done, then trust me, they will love you.
जितना तुम इंटरव्यूअर को मेहनत कम कराओगे उतना दे विल लाइक यू मोर एंड उतना यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. ट्रस्ट मी, आई हैव क्लियर्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड आई कैन टेल यू दैट इट रियली हेल्प्स. ओके, so yeah, use NGO. And the second thing that you can do in a gap that will not affect your education. Now समझो, NGO का काम मतलब हफ्ते का कितना टाइम डालना है, हफ्ते के 4 से 5 आवर्स डालना है. अब पूरे हफ्ते में तुम 4-5 आवर्स डाल सकते हो, दैट इज वेरी इजी. आई पुट अप संडे का एवरी संडे 4 आवर्स आई पुट अप ऑन माय NGO वर्क. एंड द अदर वन इज सर्टिफिकेशंस. सर्टिफिकेशंस कोई भी फालतू मत कर लेना. सी अंडरस्टैंड, देयर आर फ्री सर्टिफिकेशंस एंड ट्रस्ट मी दे डोंट गेट एनी वैल्यू. फ्री सर्टिफिकेशंस की कोई वैल्यू नहीं देता क्योंकि सबको पता है कोई भी ऐसे भी कर लेता है या फिर उनके आंसर्स तो इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं, सीधे गूगल करके तुम टेस्ट खत्म कर सकते हो. देयर आर अ फ्यू सर्टिफिकेशंस व्हिच रियली विल हेल्प यू आउट. सर्टिफिकेशंस हो गए, कोर्सेज हो गए. वन ऑफ देम इज CFA. बाद में आ गया सिक्स सिग्मा. And for marketing people, you guys have a leeway that you guys can do Google Analytics. जो ज्यादा जो पेड कोर्सेज नहीं है, अगर है तो बहुत ज्यादा चीप है. Google Analytics, Google Marketing, Facebook Marketing, ये सारे कोर्सेज तुमने कर लिए ना. And if you are thorough with them, then trust me, you will really stand out. तुम अपने बोल सकते हो इंटरव्यूअर को, मैंने ये टाइम पे सिक्स सिग्मा कोर्स किया and I was researching on it. मैंने CFA किया and I made sure that मेरा CFA का इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है. मैंने एनालिटिक्स और मार्केटिंग के कोर्सेज किए और वो मेरा उन पे नॉलेज बहुत अच्छा है. बट वो तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा. ट्रस्ट मी, आई हैव बीन अ मार्केटर, डिजिटल मार्केटर फॉर 2 years. It is very easy. I can really help you out with that. Six Sigma is something that I honestly cannot help you out with. CFA का पढ़ाई मेरा थोड़ा चालू है, तो I can maybe help you out with it. चलो, now the next one. How does a gap affect my MBA application and placement? Now here is a complicated question. Okay, let me draw a graph for you. देखो, गैप 1 साल का, गैप 2 साल का, गैप 3 साल का, लाइक 1 year गैप, 2 year गैप, 3 year गैप एंड 3+ हो गया. ओके, कितना इफेक्ट पड़ता है? 1 year गैप का थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, 2 year गैप का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. नाउ अंडरस्टैंड, वेट, आई विल ड्रॉ इट विद स्ट्रेटर लाइंस, इट विल बी इजियर फॉर. 1 year गैप का थोड़ा असर पड़ेगा. दे नो दैट चलो 1 साल इसने पढ़ाई की होगी, कुछ भी किया होगा, ग्रेजुएशन से जस्ट निकला था, इट इज फाइन. यू कैन जस्टिफाई इट इन मेनी वेज. लाइक मैं इतने सारे आंसर्स तुम लोग को निकाल के दे सकता हूँ कि यू कांट इवन बिलीव. बाद में होता है 2 year का गैप. 2 year गैप इज समथिंग दैट इज ट्रबलसम बिकॉज तुम्हें इसको जस्टिफाई करने के लिए, ऐसा भी नहीं कि तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, एनजीओ में काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. यू हैव टू नो हाउ टू जस्टिफाई 2 year गैप वेरी इजीली. एंड फाइनली आ जाता है 3 year गैप. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट 3 year प्लस के गैप में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट ये देखो, यहाँ पे जितना डिफिकल्ट हो जाता है ना, यहाँ पे डिफिकल्टी उतनी कम होती रहती है. बिकॉज दे नो दैट 2 साल से ज्यादा गैप है, मतलब बंदे ने लाइफ में थोड़ा टाइम वेस्ट किया है, लाइफ में थोड़ा टाइम इसने डाला है किधर तो. बट इसके बाद जस्टिफाई करना, तुम्हें देखो, अगर तुम्हारा 3 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, या फिर कुछ भी है, यू कॉल इट अ गैप और वर्क एक्स और वट एवर, यू हैव टू जस्टिफाई इट बाय जस्ट सेइंग I was finding a new path in life. I was making sure that I did a few mistakes and I'm trying to justify them by actually coming to a college that is so good and I want to change my path in life. But यही चीज अगर तुम 2 साल में बोलोगे तो वो लोग बोलेंगे 2 साल में तुमने अपना path in life decide कर लिया. ऐसा नहीं चलेगा. So they will be very apprehensive about believing a 2 year का gap. वो time पे you have to do different things. These are the things that I can maybe help you out with. 1 year gap, don't worry at all. Tell them I was in I tried to get into the NIMI college, I did not get a good placement, I did not get into a good college, I wanted to try again and get a better college. Tell them and trust me, it is done. 1 साल का gap is the easiest. 1 साल का गैप कोई कंपनीज भी नहीं ध्यान देते, कोई कॉलेजेस को भी ध्यान फर्क नहीं पड़ता है. आई हैव पीपल इवन एट IIM A B and C who have 1.5 year का गैप, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. एंड आई हैव पीपल इवन एट ISB, I know 2 of my friends in ISB, both of them have 2.5 years का गैप in their profile. गैप मतलब legitimate गैप, ना एनजीओ वर्क ना कुछ ये वो कुछ नहीं था उनका. They knew how to justify it. I helped them out with the interview process. मैंने उनको 4-5 इंटरव्यूज भी लिए. It really helped them out. Both of them are just passed out of ISB ये साल. So it will really help you out. Now, how to justify a gap in an interview? Now this is something that I've been telling you since the last 10-15 minutes. Gap depends 2-3 साल. कितने साल का है? 1 year, 2 year, 3+ years. 1 year का गैप, you can just say exam repeat.
health, and the final thing that you can do is that business experience. Why this will work out now in the end, you tell me. Guys, if you know Indian law, you must know that Indian law के हिसाब से अगर तुम्हारा रेवेन्यू 20 lakhs प्लस जाता है, 20 lakhs के प्लस, ओनली देन यू हैव टू जीएसटी रजिस्टर. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 20 lakhs प्लस तुम्हारा इनकम होना चाहिए. पहले साल में किसका होता है 20 lakhs इनकम? Very few people. Like if you are very lucky, if you are selling something, like if you are selling a product that is not available at all anywhere, तो ही तुम्हारा 20 lakh plus का profit होगा. तो जब तक वो नहीं होता, you can simply tell them, yeah, the company was not registered because I did not have to GST register my company and it was a startup, so that is why I had not registered it. उनको बोले मैंने बिजनेस चालू किया, make a story around it, खत्म. एक साल का बिजनेस मतलब ज्यादा तुमने काम भी नहीं किया है, बट इट एड्स टू योर प्रोफाइल सेइंग दैट अरे इसने खुद का बिजनेस चालू किया. अगर तुम्हें अच्छे से स्टोरी बनाने आती है, then trust me, you can really sell a business experience very well. Now second, now please don't tell me that I'm teaching you how to lie. I'm telling you कि कैसे तुम्हारा इंटरव्यू सुधारना है. So it's fine. I always say an interview is two liars. तुम जब इंटरव्यू में पूछते हैं ना how is the company culture, वो लोग भी तुम्हें झूठी बोलते होते हैं. All of them will lie. All the interviews will lie. बोले मेरा अरे कंपनी कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत चिल है, लोग मजे करते हैं, कैसे भी कपड़े पहन के आओ, मीटिंग्स में भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है. कुछ नहीं मिलता है. So yeah, if you are lying, they are also lying. So be very careful. It is just a thing of who is the better liar. So yeah, 2 साल का you can say again you can say family issue. You can say you changed a stream. तुम पहले यूपीएससी आईपीएससी यूपीएससी एसएससी वो सब की कर रहे थे. चेंज स्ट्रीम एंड फाइनल बैड वर्क एक्स. तुमने कोई कंपनी ज्वाइन की, तुम वहां पे 1 साल रहे, बट 1 साल के बाद तुम्हें पता चला अरे नहीं ये कंपनी में मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग पेड इनफ एंड मुझे इधर कुछ सीखने नहीं मिल रहा है. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज इफ आई वांट टू ग्रो इन द फ्यूचर एंड इफ आई वांट टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू अ कंपनी, आई विल नीड मोर एजुकेशन सो आई कैन बी इन अ मैनेजरियल रोल एंड आई कैन मैनेज पीपल बेटर. दैट इज व्हाट यू विल से इफ यू हैव अ 2 years का गैप. एंड 3+ years का गैप, you can say again bad work, not bad work ex, you will say the work ex that stop teaching. So stop learning in WorkX. Stop learning in WorkX. You reached a glass window, a glass ceiling. ग्लास सीलिंग मतलब क्या? मैं मैनेजर लेवल पे पहुंच गया, बट उसके ऊपर मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ. आई एम नॉट एबल टू गो अहेड बिकॉज वो लोग जो एमडी, समझो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, वो लोग मैनेजर लेवल में सीधा एमबीए स्टूडेंट्स को ही लेते हैं. वो लोग नहीं लेते मेरे लेवल के लोगों को. मैं ग्रेजुएशन वाला हूँ और मैं मैनेजर नहीं बन सकता बिकॉज मेरे पास एमबीए नहीं है. एंड मैं देखता हूँ कल सुबह कोई नया 20 साल का लौंडा आके एमबीए किया है उसने और वो आके मैनेजर बन जाता है. यू कैन से आई वांटेड टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग, आई वांटेड टू गो अहेड इन माय लाइफ. And finally, here you can also say you have more responsibility and your finances are something that you need to pay attention to. Finances. You want financial growth. Now, trust me, this is a very important. लोग बोलते नहीं कि पैसा चाहिए. अरे भाई बोलो. You can say that you want money. Be realistic. सबको पैसा चाहिए. So 3 साल बाद वाला वर्क, you guys can say, I did not see financial growth in my company. 2 साल तक पैसे की बात मत करना. 2 साल वाले कभी भी पैसे की बात मत करना. वर्कएक्स की बात बोल रहे हो तो डोंट से दैट पैसा कम था. 2 साल में तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला. बट इन द 3rd year यू एक्सपेक्ट मनी. 3 साल पैसे के बिना काम करना या फिर कम पैसे में काम करना इज अ बैड डील. यू कैन से माय फाइनेंशियल इन द कंपनी दैट आई वाज वर्किंग वाज नॉट ग्रोइंग एट अ पेस वेल व्हिच आई वुड लाइक इट टू. आई वाज पुटिंग इन मोर एफर्ट बट मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा था. That is how you can say, that is how you can justify a gap. And finally, with gap, without gap. For a company, now I'm talking from a company's perspective, okay? With gap, without gap. दोनों के एडवांटेजेस, दोनों के डिसएडवांटेजेस. ये गैप आ गया, ये गैप एंड ये विदाउट गैप. सो या गैप में फायदा क्या होता है? पर्सन हैज एक्सपीरियंस.
नाउ आई एम सेइंग तुम कौन सी चीजें इंटरव्यू में अपने स्टार पॉइंट्स दिखा सकते हो. मैं गैप वाला हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई हैव वर्कड ऑन माय पर्सनालिटी. ये दो चीजें यू कैन रियली हेल्प. एंड गैप में यू कैन शो एन एनजीओ का वर्क. विदाउट गैप यू गाइस हैव एन एडवांटेज दैट यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू लर्न, बिकॉज तुम्हारा लर्निंग का फ्लो चालू है. यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग. तुमने प्रॉपरली लर्निंग का फ्लो फॉलो किया है, क्योंकि तुम ग्रेजुएशन से जस्ट निकले हो. दैट इज व्हाई यू कैन से अरे मेरा लर्निंग प्रोसेस चालू है. इफ यू आर अ फ्रेशर, नाउ फॉर फ्रेशर, विदाउट फ्रेशर, fresher and work ex, without gap you can play on your work experience. Like you can play on the fact that okay, I have work experience and I want to grow more, desire to grow. And here you can really play positively on the fact that dono mein you can say that you know that this is your age when you can grow. दिस इज द एज व्हेन यू कैन ग्रो. तुम अभी 21 22 23 साल के हो, फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन पुट इन 2 more years टू ग्रो एक्सपोनेंशियली. ओके, एक्सपोनेंशियली. एज टू ग्रो एक्सपोनेंशियली. ये टाइम पे यू कैन लीव वर्क. तुम काम छोड़ सकते हो बट तुम ग्रोथ नहीं छोड़ सकते. योर ग्रोथ इज योर प्रायोरिटी. दैट इज व्हाट पीपल विदाउट अ गैप कैन से. ओके, ये दो पॉइंट्स अगर तुम इंटरव्यू में बोल रहे हो, ये दोनों कैटेगरीज में तुम हो, तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इफ यू से दीज पॉइंट्स, ट्रस्ट मी योर इंटरव्यू विल गो अमेजिंग. बिकॉज इंटरव्यू को पता चलेगा या फिर उसको लगेगा ओके इसको जो चाहिए उसको पता है. ओके, सो यस, अरे हो गया. So guys, that's it. This was the for today's video. You guys can contact me on our number, that is Crackavitest. You can also contact me through my website, that is crackavitest.com. And apart from that, I have a few things coming out. I really hope you guys join the dono live session, join karo and join the Telegram group. It will really help you out. Okay, chalo. If you need anything, just reach out to us and I'm sure Crackavitest will be able to help you. Bye guys.